in Indian Contract Act, there is a scope of revocation of offer acceptance also, right? Section 6 of Indian Contract Act defines revocation how made. Once you made an offer, whether it can be revoked or not, it has been explained in section 6. A proposal और offer एक ही चीज़ है. A proposal is revoked by communication of notice of revocation by the proposer to the other party. कैसे रिवोक कर सकते हैं? ऑफ रेवोकेशन. रेवोकेशन कम्युनिकेट करनी है. जैसे मैंने ऑफर किया, साथ में मैंने रेवोकेशन का भी भेज दिया कि भाई मैं रिवोक कर रहा हूँ. बट इन दैट सिचुएशन ऑफर तभी रिवोक होगी इफ माई रेवोकेशन रीचेज टू यू बिफोर द माई ओरिजिनल ऑफर एंड इनफैक्ट बिफोर द एक्सेप्टेंस. आपके पास ऑफर पहुंच गई बट अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं की. बिफोर एक्सेप्टिंग माई रेवोकेशन ऑफ ऑफर रीचेज टू यू, that amounts to revocation of offer. Once there is a revocation of offer, you cannot accept the same later on. Second, by lapse of time prescribed in the proposal for its acceptance, or if no time is prescribed, by the lapse of the reasonable time without communication of the acceptance. Second condition क्या है? How the proposal can be revoked? Lapse of time if the time has been prescribed. ऑफर चल रही है, एक टीवी के साथ दूसरा टीवी फ्री टिल 31st October 2000. So you can accept the same before 31st. After 31st you cannot accept because it has been revoked not by way of notice but by way of lapse of time. By failure of the acceptor to fulfill the condition precedent to acceptance. Condition, if failure to fulfill the condition, for example, ऑफर थी, हमने we have discussed the case carbolic smoke ball. Condition was to take this medicine as per the prescription. Once you did not fulfill that conditions, that offer is lapse, right? By the failure of the acceptor to fulfill the condition precedent. Offer accept करने के लिए कुछ conditions ही precedent. Unless that is accepted, that is not your valid acceptance. By death or insanity of the proposer, if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before the acceptance. That is very important. Let's suppose offer की ही death हो जाती है, offer lapses, but that knowledge of death must reaches to the acceptor before the completion of the acceptance. उसने एक्सेप्टेंस कर ली, पोस्ट ऑफिस में डाल दी है, कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं बन गया ना. लीगल इफ इट इज कैपेबल ऑफ एनफोर्सिंग थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव. इफ द ऑफर इज विद रिस्पेक्ट टू द फॉर एग्जाम्पल द ऑफर दैट आई एम ए सिंगर, मैं सिंगर हूँ, तो मैंने कहीं कंसर्ट पे गाना गाना था. द मोमेंट आई बिकम इल और आई बिकेम डेड, आई कैनॉट परफॉर्म दैट परफॉर्मेंस. दैट ऑटोमेटिकली उसमें जो पर्सनल कैपेसिटी अगर मैंने परफॉर्म करनी है तो उसमें तो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो कर नहीं सकते ना. दिस इज हाउ द रेवोकेशन ऑफ ऑफर. एक रीडिंग मारूंगा सेक्शन 4 को.
communication when complete, a communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. The communication of offer समझ गया, जब जैसे इसमें था लालमन शुक्ला में, unless it is communicated, it comes into the knowledge of the person who has to accept, it is not, he cannot accept. Unless the offer comes to his knowledge, he cannot accept. Second आगे, the communication of an acceptance is complete as against the proposer when it put into a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor. Communication of acceptance, acceptance कब, वो हमने डिस्कस कर लिया. The moment you put the same into the post office, out of your reach, कॉन्ट्रैक्ट वहीं बन गया. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी अगेंस्ट दी ऑफरर, जिसने ऑफर की है. मैंने ऑफर किया था, इसने एक्सेप्ट कर लिया, डाल लिया, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट मी. इसके पास फिर भी ऑप्शन है उसको रिवोक करने के लिए, अगर बाय वे ऑफ टेलीग्राम और एनी अदर फास्ट मोड. समझ आ रहा है? Communication of acceptance is complete as against the proposal when it put into the course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor. As against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. The communication of revocation is complete as against the person who makes it when it put into the course of the transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it, as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge. Clear? Illustration इसकी पढ़ना ज़रूर. अगर क्वेश्चन आता है कि आपको इसका लिखना है तो यू मस्ट राइट द इलस्ट्रेशन ऑल्सो. थोड़ी सी डेफिनेशन इन योर ओन वर्ड्स. इलस्ट्रेशन अगर लिखो तो दैट इज़ वेरी गुड. प्लस एक केस लॉ. डिपार्टमेंट में हम खुद ही अपने केस लॉ यहाँ पर अगर आप साइटेशन लिखो तो उसके मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे. ठीक है, इलस्ट्रेशन भी लिखो तो तभी मार्क्स ज़्यादा आएंगे. जैसे इसमें था, ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल ए हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस. द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर. ठीक है, द मोमेंट यू रिसीव द लेटर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट. बी एक्सेप्ट्स एज प्रपोजल by letter sent by post. The communication of acceptance is complete होगी. कॉन्ट्रैक्ट बन गया यहीं पर. As against A when the letter posted, as against B when the letter is received by A. ठीक है, I have explained you कि कहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं बन गया, बट एक्सेप्टर के पास एक ऑप्शन है टू रिवोक. एक्सेप्टर कब बाउंड हुआ? जब वो मेरे पास पहुँच गया, ऑफर के पास पहुँच गया. A revokes his proposal by telegram. The revocation is complete as against A when the telegram is dispatched. It is complete against a B when B receives. Nothing to understand. ठीक है? This is your communication of acceptance, offer, revocation. What is offer? What is acceptance? ठीक है? अब हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली? What is contract? All agreements and agreement which are enforceable by law. अब enforceable कौन से agreements हैं? Section 10 explains. पहला agreement पढ़ लिया हमने. Agreement क्या है? Promise, offer, acceptance. एक चीज़ और है बड़ी इंपॉर्टेंट. अभी तक एग्रीमेंट बना नहीं है, अभी तक सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ है. इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कंसिडरेशन. क्यों? बिकॉज विदाउट कंसिडरेशन देयर कैन नॉट बी एन एग्रीमेंट. सेक्शन 2D डिफाइंस, जैसे कंसिडरेशन पे आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो यू मस्ट राइट दैट सेक्शन 2D डिफाइंस कंसिडरेशन. एज इट इज़ लैंग्वेज नहीं भी लिख पाओ, बट आपने ये लिखना है कि 2D डिफाइंस दिस गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर. When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise.
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इंग्लिश लॉ. Here it says that when at the desire of the promisor, the promisee or any other person, that means consideration must be on the desire of the promisor. मैंने ऑफर किया तो एक्सेप्टर ने मेरी डिज़ायर पे, अगर मेरी डिज़ायर नहीं है टू सेल दिस, तो द एक्सेप्टर कैन नॉट एक्सेप्ट. When at the desire of the promisor, offerer की, the promisee or any other person, that means acceptor की जगह कोई और भी consideration move कर सकता है, but contract is always between the offerer and the acceptor. Consideration can be moved. Let's suppose I offer to sell my mobile to Ranjit for rupees 10,000. रंजीत accept भी कर लेता है, okay, I am ready to accept, और चेक काट के देती है सोनिका. मैं बाद में कहता हूँ कि भाई आई विल नॉट परफॉर्म, आई विल नॉट सेल, ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट मी फॉर दिस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. मैं ये प्ली लेता हूँ कि भाई ही हैज़ नॉट गिवन एनी कंसिडरेशन एंड दिस इज सेटल लॉ, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void. Court says no, there is a consideration by the promisee or any other person on his behalf. On his behalf, the consideration was given by the Sonika. So this is a valid consideration. It amounts to contract. दो तीन केसेस डिस्कस करेंगे हम इसी पे. एक बड़ा लैंडमार्क केस रहा, आपने भी पढ़ा होगा, वो मामे भांजी वाला. क्या टाइटल था उसका? दुर्गा प्रसाद बांधु. हैं? दुर्गा प्रसाद नहीं बांधु. चिन्मया वर्सेस समथिंग था. चिन्नैया वर्सेस रमैया. यस, दैट इज अ केस. देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन. पढ़ा होगा. यस, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज देयर एप्लीकेबल टू इंडिया ऑल्सो, दैट स्ट्रेंजर कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट दी. ठीक है, देयर मस्ट बी ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट. मेरे और रंजीत के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोनिका या अदर या अंकित कैन नॉट फाइल अ केस बिकॉज देयर मस्ट बी ए प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बट what is privity of consideration means even the consideration, privity of consideration mean consideration अगर किसी और ने भी दी है, even then the parties are legally bound, which was held in the case of चिन्नैया versus रमैया. उसमें क्या हुआ था, मदर हैड एग्जीक्यूटेड, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन दी old lady by gift deed gave certain gift deed. The gift deed is also an agreement. Gift deed certain properties to her daughter. with the condition कि that in out of this property you have to pay this much of amount to my brother, means your uncle, right? She agreed. कंसिडरेशन आ गई, वो प्रॉपर्टी दे रही है मदर, उसको गिफ्ट दी करी है, और वो प्रॉमिस कर रही है यस आई विल पे. कंसिडरेशन फॉर बोथ द साइड इज देयर. दैट ओल्ड लेडी डाइज, दैट डॉटर पेड दिस मच ऑफ अमाउंट फॉर सम टाइम एंड देयर आफ्टर स्टॉप्स. अंकल फाइल्ड अ केस फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दिस. वो कहते हैं कि भाई देयर वॉज नो कंसिडरेशन by you. I am paying you this much of amount, but you are not, in return you are not paying me anything, so there is no consideration. So without consideration no agreement. Court held no,
consideration was from the side of old lady, because 2D says when at the desire of the promisor, promisee or any other person, इसकी तरफ से कंसिडरेशन इसकी सिस्टर ने दी है, नाउ यू आर लीगली बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. Consideration is compulsory in contract. Yes. No, there cannot be any contract without consideration, except there are 3 exceptions that we'll also discuss. Section 25 defines an agreement without consideration is void. We'll read section 25. और पूरे यूनिवर्स में as per Indian Contract Act there are only 3 conditions. Otherwise general rule is an agreement without consideration is void. But there are 3 exceptions where without consideration the agreement is valid. Section 25 agreement without consideration void. ये जनरल रूल आ गया. Unless it is in writing and registered or is promised to compensate for something done or is promised to pay a debt barred by limitation law. डिफाइन किया हुआ है. An agreement made without consideration is void unless, पहली आगे कंडीशन क्या है? It is expressed in writing and registered under the law for the time being in force for the registration and is made on account of natural love and affection between the parties standing in a near relation to each other. पहली है means gift. Absolutely right. जब you must have read any draft of gift deed, आपने कभी पढ़ा gift deed? उसमें एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लिखा हुआ, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. अगर ये वर्ड नहीं होगा ना तो दैट गिफ्ट इट कैन बिकम इनवैलिड, बिकॉज अगर ये नहीं है तो देर इज नो कंसिडरेशन इन गिफ्ट डीड. एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन कैन बी वैलिड ओनली इफ इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड. जैसे गिफ्ट डीड इज ए कंपल्सरी रजिस्टेबल डॉक्यूमेंट एज पर सेक्शन 17 है कि कौन सी है रजिस्ट्रेशन एक्ट की. It is a compulsory registrable document. So an agreement must be in writing and registered and must be made out of natural love and सर अगर इसमें affection. ये कंडीशन हो कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने वो अभी केस देखा था चिन्नैया वर्सेस रमैया, तो उसमें एक एन्युटी लगा दी थी धोनी ने, डोनर ने धोनी पर कि शी हैज टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू हिज ओल्ड सिस्टर. अभी यहाँ पर भी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है, बट उसमें एक कंडीशन है कि शी हैज टू पे, तो ये अब नहीं होगा, ये गिफ्ट. This is a condition precedent. She has accepted that. ऑफर में हमने ये भी पढ़ा ना, ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, और ऑफर के साथ अगर कंडीशंस हैं वो फुलफिल करना ज़रूरी है. अगर यू एक्सेप्टेड दैट ऑफर विदाउट फुलफिलिंग दैट कंडीशन, योर एक्सेप्टेंस इज इनवैलिड. अंडरस्टूड? हमने पीछे पढ़ा ना, अगर वो फुलफिल नहीं करती है दैट मीन्स दैट गिफ्ट इट कैन बिकम ए वॉइड इफ़ यू आर नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन. कंडीशन पहले फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही फर्स्ट इज जनरल रूल कैन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एक्सेप्ट 3 कंडीशन. फर्स्ट इज नेचुरल लव, इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड. सेकेंड आ गया, it is a promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promisor or something which the promisor was legally compellable to do. Some act has already been done by one of the parties, right? And later on the other party promises to compensate you. किस चीज़ के लिए? फॉर द वर्क विच यू हैव ऑलरेडी डन. अदरवाइज तो ना, जैसे मैं मोबाइल दे रहा हूँ, ये खरीद रहा है, कंसिडरेशन क्या है? मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, वो पैसे दे रहा है, देयर इज अ कंसिडरेशन प्रेजेंट. समटाइम्स जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू सेव समबडी फ्रॉम ड्रोनिंग, किसी का बच्चा बचा लेते हो, किसी का बच्चा डूब रहा है, आप जंप मारते हो, बचा के ले आते हो. आप ये सोच के थोड़ी गए थे कि बाहर लाएंगे तो ये पैसे देगा, ना तो कोई वैसी उसकी ऑफ़र थी
ना ही वैसे आपकी इंटेंशन थी, बचा के आप हैंड ओवर कर देते हो, तो ना वो बाइंड है कोई पैसे देने के लिए, ना आप एंटाइटल हो पैसे उससे लेने के लिए, बिकॉज देयर वाज नो ऑफर रिगार्डिंग दिस। लेट्स सपोज आप बच्चा बचा के ले आते हो, और उसके बाद जिसका बच्चा बचा के ले आते हो, ही ऑफर्स यू कि भाई आपने मेरा बच्चा बचाया, आई विल पे यू दिस मच ऑफ अमाउंट। आप कहते हो ओके, बाद में वो नहीं देता है, इन दैट सिचुएशन ही इज लीगली बाउंड टू पे यू। वो कहता है भाई देर इज नो कंसिडरेशन, जब मैंने प्रॉमिस किया तो देर इज नो कंसिडरेशन, बट कोर्ट सेड यू हैव मेड प्रॉमिस टू पे फॉर द एक्ट विच शी हैज ऑलरेडी डन। अगर आप प्रॉमिस नहीं करते टू पे तो यू आर नॉट लाइबल टू पे। अंडरस्टूड सोनिका? ये आ गई सेकेंड कंडीशन। थर्ड कौन सी आई? इफ इट इज ए प्रॉमिस मेड इन राइटिंग and signed by the person to be charged therewith or by his agent generally or specifically authorized in that behalf to pay wholly or in part debt of which creditor might have enforced payment but for the law for the limitation of suits meaning thereby। देखो पहली कंडीशन और थर्ड कंडीशन क्या है? पहली कहती है इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, राइटिंग होनी चाहिए, रजिस्टर्ड। थर्ड कहती है इट इज मेड इन राइटिंग एंड साइन। मतलब दोनों ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होंगे जब ये दोनों इन राइटिंग होंगे, एक्सप्रेस इम्प्लाइड नहीं, ओरल नहीं। ये क्या कहता है? टाइम बार डेट है। लेट्स सपोज इसने सोनिका से पैसे लेने हैं, रंजीत ने। Let's suppose he has given rupees 1 lakh to her. She delayed the same for one reason or another reason. आज दूंगी, कल दूंगी, because she knew that कि after certain period of time, suit for recovery का शायद 3 years होता है, he legally he cannot, ऐसे से करके 3 साल निकल जाते हैं। Now he is barred by limitation. जो इसने उधारे दिए थे he cannot claim. But लेटर ऑन उसको आता है कि यार पैसे लिए थे, अब दे देते हैं। वो कहती है कि ओके मैं तेरे को जितने लिए थे 1 लाख लिए थे वो तो नहीं दे पाऊंगी, बट आई प्रॉमिस यू टू पे ₹50,000 टाइम बार डेट होली और इन पार्ट। इसमें लिखा हुआ है कि मैं तेरे को 50,000 दे दूंगी। वो कहता ओके ठीक है, एंड दैट वाज इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टीज। उसके बाद फिर वही बात आ गई, वो आजकल दूंगी 50,000। देन इसको पता है अब तो भाई 3 साल का टाइम पीरियड है। ही फाइल्ड अ केस फॉर रिकवरी ऑफ 50,000, नॉट फॉर रिकवरी ऑफ 1 लाख, फॉर रिकवरी ऑफ 50,000। शी टुक ए प्ली दैट दिस इज ए टाइम बार डेट। कब लिया था? 4 साल पहले लिया था। कोड है दैट, ये कहती है दैट नो, ये जो अभी नया है, पहली तो वो टाइम बार्ड है, अब ये 50,000 है विच आई प्रॉमिस्ड हिम टू पे, दैट इज दैट एग्रीमेंट विच आई हैव, दैट इज इन राइटिंग एंड साइन, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन। सो विदाउट कंसिडरेशन द एग्रीमेंट इज वाइड। कोर्ट सेड नो, दिस फॉल्स अंडर द एक्सेप्शन नंबर 3। टाइम बार्ड डेट यू प्रॉमिस टू पे होली और इन पार्ट, नाउ यू आर लीगली बाउंड टू। सो दिस इज योर कंसिडरेशन। आपको 3 चीज़ें समझ आ गई, योर ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। ये तीनों चीज़ें हो गई तो एग्रीमेंट बन गया। सर इसमें एक और चीज़ ऐड होगी, क्रिएशन ऑफ एजेंसी करती है सेक्शन 1 इट प्रोवाइड्स दैट नो कंसीडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी। दैट इज इट, दैट विल डिस्कस। अगर लॉ ऑफ एजेंसी है इसमें, विल डिस्कस इन दैट। ठीक है। इसकी इलस्ट्रेशन ज़रूर पढ़ना। एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक इलस्ट्रेशन पढ़ता हूँ, ए प्रोमिस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव बी ₹1,000, दिस इज वाइड एग्रीमेंट विद, बिकॉज 25 कह रही है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड।
A for natural love and affection promises to give his son rupees 1000. A puts his promise into writing and registered. This is contract, right? Because of section 25 exception. यहाँ ये नहीं कह सकते this is without, because son has not paid anything. This is a gift. This is a valid. You must read all this illustration अगर टाइम है. ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, ऑफर एक्सेप्टेंस. अब सेकंड कंडीशन क्या चाहिए सेक्शन 10 के लिए? एग्रीमेंट क्लियर हो गया आपका. सेकंड एसेंशियल क्या थी? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. Which section deals with capacity to contract? I think section 10, section 11 or 12, I think. 11. Section 11.